Hello. Yes, good afternoon, class. Good afternoon. Okay, so now today the rest questions of the tutorial sheet 5 will be discussed. Clear? So sharing you the file. So okay, so this is tutorial number 5. You see, clear? Now, if you go through the again the starting questions, so most of the topics as we have discussed right now, clear? They say, what do you understand by application layer explain? So this is the very fundamental question of the application layer in this unit. And then DNS related questions, that is second and third. Addressing a scheme and understanding the concept of DNS, that is second and third. So this I have covered in the lecture also. So उसके बाद आपका question number 4 है, that is what do you mean by FTP? तो ये भी क्वेश्चन आपका हमने करा दिया है, FTP क्या होता है. Then HTTP to access www. This is also discussed. Concept of this hypertext transfer protocol we have discussed by today. Also SMTP. Question number 6, that is discuss the concept of SMTP. So ये भी आज हम लोगों ने डिस्कस किया था. What is SMTP protocol basically, and how the communication is done through SMTP protocol. So this is also discussed by टुडे. ठीक है, इसके बाद है आपका कंपैरिजन भी आज हम लोगों ने देखा इसमें लेक्चर में. So all of you are getting my voice properly? Class, all of you are getting my voice properly? Hello? My voice. श्वेता शुक्ला, सिद्धांत श्रीवास्तव. Yes, sir. Am I audible or not? So I'm audible now. Okay, so इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया. दैट इज STP एंड SMTP का जो कंपैरिजन है, ये आज हम लोगों ने क्वेश्चन, ये लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या क्या डिफरेंसेस हैं. अराउंड 5 डिफरेंसेस वी हैव डिस्कस्ड. क्लियर? और जैसे कि हमने बताया था आपको STTP में और SMTP में कि SMTP आपका क्लाइंट टू सर्वर मैसेज को एक्सेस करता है केवल. STTP में बोथ एंड से मैसेज एक्सेस होते हैं, क्लाइंट टू सर्वर एज वेल एज
from server to client, so it is a bi-directional process. जो हमने बताया था दोनों आपका TCP प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, HTTP भी और SMTP भी, ठीक है। तो इसके बाद पोर्ट्स हमने बताए थे, जैसे HTTP आपका पोर्ट 80 यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। सो डिफरेंसेस हमने आपको 3-5 पॉइंट बताए थे इसमें, HTTP में और SMTP में। और हमने आपको एक पॉइंट इसमें और इम्पोर्टेंट बताया था, जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि SMTP प्रोटोकॉल में क्या होता है कि जैसे कोई भी मैसेज पहले ट्रांसफर होने से पहले, मतलब जो क्लाइंट है या यूजर है उस मैसेज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, मतलब मैसेज पहले ट्रांसफर होगा, देन इट विल बी स्टोर्ड एंड देन इट विल बी डाउनलोडेड। So message will be stored into the mailbox to the server end, and then it will be downloaded from there. Clear? So और HTTP में क्या होता है कि HTTP is a type of immediate action. तो इसमें आपका जैसे ही मैसेज आएगा that will be communicated और it will be downloaded. Clear? So accessing तुरंत की तुरंत हो जाती है इसमें, and there is no as such any type of storage जहाँ पे आप उसको स्टोर कर रहे हैं। फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मेल, इट्स ऑपरेशन, एक्सप्लेन मेल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। क्लियर? So you need to discuss the short note on electronic mail, means what is electronic mail and how the messages gets communicated through, या mails get communicated through electronic mail. Clear? Then we need to explain the access protocols related to this. Clear? So what are the different access protocols for the communication purpose? So you need to explain it. Then question number 9 is explain POP3, means Post Office Protocol version 3 with suitable processing diagram. We have the diagram also, जो कि हमने आपको दिखाया भी था। And what are its modes? Modes में हमने आपको दो बताए थे, एक होता है आपका, ओके क्लास, मेरा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स इन पीओपी, आज हमने बताया भी था। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस? यस। ओके, हमने दो मोड्स बताए थे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में। कौन कौन से मोड्स थे? कैन एनीवन एक्सप्लेन? एक तो मैंने बताया था कि डिलीट मोड होता है, कि अगर जैसे कोई भी मैसेज है वो प्रोसेस हुआ फिर उसको सर्वर ने डिलीट कर दिया, मेल बॉक्स आपका वहां से खाली हो गया, उसमें से वो डेटा खाली हो गया डाउनलोड होने के बाद। जैसे ही क्लाइंट ने मेल बॉक्स से मैसेज को एक्सेस किया, then it is deleted. Now the fresh data will come into the mailbox and the past data will has been gone. Clear? So और दूसरा हमने क्या बताया था, आज ही डिस्कस किया था पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में, हमने आपको बताया था ना दो मोड्स होते हैं, कि डिलीट मोड है जो हमने भी आपको बताया, दूसरा क्या बताया था? So I think you all are not डाउनलोड क्लास में। क्या? Have you said something? शायद डाउनलोड मोड था शायद। डाउनलोड मोड? नो, डाउनलोड मोड Keep कोई मोड mode. नहीं है। कीप मोड, यस, कीप मोड और डिलीट मोड, दो मोड हमने आपको बताए थे। कीप मोड में हमने आपको बताया था कि अगर जैसे कि अगर मान लीजिए सेम पर्सनल कंप्यूटर पे वो एक्सेस नहीं कर रहा है, अदर देन मतलब कोई अदर नेटवर्क में अदर सिस्टम पे बैठ के वो उसको एक्सेस कर रहा है, तो वहां पे वो उसको कीप कर सकता है, मतलब होल्ड कर सकता है, मैसेज को रख सकता है डिलीट करने के बजाय। क्लियर? लेकिन ऐसा बहुत कम होता है,
जनरली जो डिलीट मोड है वो ज़्यादा इसमें यूज होता है कि मतलब हमारा जो बॉक्स है जनरली हमारा वो परमानेंट कंप्यूटर पे ना अगर वो मान लीजिए प्राइमरी कंप्यूटर पे नहीं होता, जनरली परमानेंट कंप्यूटर पे ही सेट वो वर्क कर रहा होता है यूजर, तो इन दैट केस डिलीट मोड इज व्हाट एक्टिव। कीप मोड हमारा तब यूज करते हैं जब वो परमा उसकी बजाय किसी और कंप्यूटर पे बैठा हो, देन वी यूज द कीप मोड। क्लियर? तो ये दो हमारे मोड्स होते हैं। एक आपका हमने बताया कि डिलीट मोड, दूसरा मोड। तो the next question is what? The question is explain IMAP4। इसके बारे में भी हमने आपको बताया, कॉल बेसिकली मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4। दिस इज द first one is it is a type of efficient method and also it is a type of fast method। so दोनों चीजें इसमें हमारी as compared now IMAP के बारे में कोई और बताएगा? आज ही मैंने पढ़ाया था आप लोग को IMAP के बारे में। सर जो हेलो? IMAP4 है, इसमें जो 4 है वो वर्जन नंबर है, और जो इसमें SMTP से जो मैसेजेस आते हैं उसको सॉर्टिंग और सॉर्टिंग और रिवर्टिंग, शॉर्टिंग। रिट्रीविंग, सॉर्टिंग और रिट्रीविंग। ओके, शॉर्टिंग एंड रिट्रीविंग। ओके, एनीथिंग एल्स? इसमें सर्चिंग थोड़ी फास्ट एनीथिंग होती एल्स? है। इसमें सर्चिंग इन कंपैरिजन टू पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सर्चिंग थोड़ी फास्ट होती है, क्योंकि डेटा जो होता है वो हमारा सॉर्टेड होता है। जो भी मैसेजेस होते हैं वो एक सॉर्टेड वे में होता है, तो फिर उसमें सर्चिंग बहुत फास्ट हो जाती है, प्रॉपर हायरार्किकल ऑर्डर को फॉलो। ओके ओके ओके। एनीवन एल्स कुछ और कुछ बताना चाहेगा? IMAP4 हमने आज आपको बताया भी था कि IMAP4 एक आपका स्कीम है, ठीक है, जिसमें जो हमारे मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, पहली बात तो कोई बताएगा क्या क्या डिफरेंसेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन पोस्ट ऑफिस? is getting fluctuated most of the time. Okay, okay. Can you explain the difference between the post office protocol and the second one, that is your IMAP4 version protocol?
पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल सिर्फ डाउनलोड करता है और जबकि जो आईमैप है वो कॉपी भी बना लेता है। कॉपी बना लेता है, गुड। एंड व्हाट इज द अनदर डिफरेंस? देखिए आप लोग का रिस्पांस भी आना चाहिए, क्योंकि व्हाट एवर आई एम delivering to all of you, that should be responded by your side also, क्योंकि ये सब ऐसा है ना कि इसमें योर रिस्पॉन्स इज आल्सो वैल्यूएबल। तो आप लोग अगर कुछ बोलेंगे, कुछ नए तरीके से कुछ चीजें बताएंगे, तो ये आपको जो सब्जेक्ट इज वेरी टाइप इंटरेक्टिव एंड ये आपको ही समझ में आएगा ये सब चीजें। सो इफ यू एफर्ट बाय योरसेल्फ, आपका माइंड भी चलेगा, ठीक है ना? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। सर अगर हम लोग मैं कोई चाहता चेंजेस हूँ करते यू हैं यू आल्सो, मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि आप लोग भी थोड़ा सा इंटरेक्ट हो मुझसे, क्लियर? सो आई एम जस्ट शेयरिंग यू अ फाइल। देखिए आप लोग को भी दिखा रहा हूँ मैं। सर अगर हम लोग कोई चेंजेस करते हैं तो फिर आईमैप में सारी डिवाइसेस पे भी ये दिख रहा रिफ्लेक्ट होगा होता है। आपको? ये दिख रहा है आप लोग को? फाइल दिख रही है जो भी मैंने शेयर करी है? इज इट विजिबल? ओके। आप इन पे क्या शो? difference between post office protocol and IMAP. हेलो, आज दिख रहा है ये? Yes. Okay, so many differences are there in, if you talk about the exactly the table exactly consists of what? The POSIX protocol, that is PO, and PMA. So this is reconnected. Okay, but the DB port. So the post office
protocol uses your TCP port number 153. These are this TCP है, ये POP जो है 100 एंड IMAP जो है 140. Where is email paste और IMAP server paste. ओके सो अगर हम बात करें इसमें ईमेल जो रीड करते हैं हम लोग पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में आप देख सकते हैं ऑफलाइन रहता है और IMAP में ऑनलाइन रहता है. क्लियर. तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में जो भी मेल्स आपकी एक्सेसिंग होगी वो सब आप डाउनलोडिंग के बाद उसको रीड कर सकते हैं कभी भी. तो दैट इज द ऑफलाइन मेथड. और IMAP में इट इज ऑनलाइन टाइप ऑफ मेथड. क्लियर. अगर हम बात करें कनेक्ट टाइम रिक्वायर्ड की, मतलब कनेक्शन जो टाइम रिक्वायर्ड है वो POP में लिटिल होता है और IMAP में ज्यादा होता है. ठीक है. कनेक्ट टाइम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इज लेस, while in case of IMAP it is much. If you talk about the features, so use of server resources. If you talk about the server resources, so minimal server resources is required into the post office protocol, while extensive server resources are required in IMAP. Clear. Multiple mailboxes. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में कोई भी मल्टीपल मेल बॉक्सेस की जरूरत नहीं है. एक ही मेल बॉक्स से हमारा डेटा एक्सेस हो सकता है क्योंकि वहीं पे स्टोरेज लाइंस होती है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है. ठीक है. while in case of IMAP you require multiple mailbox. मल्टीपल मेल बॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारा जैसे कोई ऑफिस है, ऑफिस में कई सारे मल्टीपल लोग हमारे कनेक्टेड हैं. IMAP में क्या है, एक बार में मल्टीपल लोग एक्सेस कर सकते हैं डेटा को, मेल को. ठीक है. लेकिन पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल में ऐसा नहीं होता है. वो जिसके लिए इंटेंडेड है वही उसको एक्सेस कर सकता है. क्लियर. एम आई गेट मेरी बात समझ में आ रही सभी को? सर तो ये एक बहुत बड़ी चीज है. पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जनरली इंटेंडेड यूजर के लिए होता है. जैसे जिसको आपने असाइन किया उसने डाउनलोड किया मेल, उसके बाद वो उसको एक्सेस कर रहा है. लेकिन IMAP क्या है, इट इज ऑनलाइन टाइप ऑफ सर्विस. सो मल्टीपल एक्सेसर या मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द मेल्स एट ए टाइम. सो इसमें क्या होता है कि ये आपका एक तरह से मल्टीपल मेल बॉक्स इसमें रन करते हैं एक बार में. ठीक है ना. जैसे आउटलुक वगैरह हो गया, आप लोग को पता होगा ऑफिस वगैरह में जैसे एक आपका जनरल मेल बॉक्स होता है जिससे कोई भी चैट्स जो भी कोई भी शेयर करता है तो वो मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस दैट पर्टिकुलर मेल और चैट. क्लियर. तो दिस इज द टाइप ऑफ सर्विस. इसके बाद आता है हु बैक्स अप मेल बॉक्सेस. इसमें पॉप के केस में यूजर बैकअप्स मेल बॉक्सेस एंड IMAP के केस में ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैन बैकअप मेल बॉक्सेस. क्लियर. गुड फॉर मोबाइल यूजर्स में अगर हम बात करें, इफ यू फीचर्स में गुड फॉर मोबाइल यूजर, देन पॉप के केस में नो है एंड IMAP के केस में यस है. ठीक है. मोबाइल यूजर्स के लिए क्या ये अच्छा है? इफ यू टॉक अबाउट पॉप सो इट इज नो, बट इन केस ऑफ IMAP इट इज यस. क्यों ऐसा है? क्योंकि IMAP इज ए ऑनलाइन टाइप ऑफ सर्विस. क्लियर. यूजर कंट्रोल ओवर डाउनलोडिंग. यूजर का कितना कंट्रोल है डाउनलोडिंग में? ठीक है. तो पॉप के केस में लिटिल कंट्रोल है और IMAP के केस में ज्यादा अच्छा कंट्रोल है, ग्रेट कंट्रोल. पार्शियल मैसेज डाउनलोड की बात अगर हम करें तो पॉप में आप नहीं कर सकते हैं, IMAP में कर सकते हैं. क्योंकि हमने बताया था IMAP के अंदर आप मैसेज को विदाउट डाउनलोड किए भी एक्सेस कर सकते हैं. मींस सर्वर प्रोड्यूसेस द मैसेजेस and the client end or the user can access the partial message also in IMAP. Clear. Before downloading the complete message या mail. Clear. But in case of POP it is not allowed.
पॉप में आपको पूरा मैसेज जब तक डाउनलोड नहीं कर लेंगे तब तक आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है आर डिस्क कोड्स ए प्रॉब्लम, नो, एंड इन दिस केस IMAP में could be in time। ठीक है, फिर सिंपल टू इम्प्लीमेंट में देखे जाए तो पॉप को इम्प्लीमेंट करना सिंपल है, बट IMAP इज ए कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम। वाइड स्प्रेड सपोर्ट की बात करें तो पॉप इज ए वाइड स्प्रेड सपोर्ट को इस पे सपोर्ट करता है, while IMAP is the growing। क्लियर? So these are some differences between IMAP and POP according to the features given। क्लियर? ये देख सकते हैं आप हाउ द एक्सेसिंग इज डन। वी हैव द IMAP बेसिकली, ये IMAP है, ये आपका POP है। यू हैव ए सेंट्रल ईमेल सर्वर ऑन बोथ साइड। यहाँ पे भी POP में भी सेंट्रल ईमेल सर्वर है, यहाँ भी सेंट्रल ईमेल सर्वर है। यहाँ पे एक ऑफिस है, होम है, यहाँ भी ऑफिस एंड होम है। यू कैन से चेक ईमेल डाउनलोड मैसेज, चेक ईमेल डाउनलोड मैसेज। यहाँ पे है चेक ईमेल लेटर एंड डाउनलोड मैसेज। यहाँ पे चेक ईमेल लेटर एंड मैसेज एब्सेंट। ये जो सेकंड वाला है, ये आप डिफरेंस के फॉर्म में देख सकते हैं कि जब ये इसने मैसेज किया चेक ईमेल लेटर, देन इट कैन स्टिल डाउन होम में आपका देखिए डाउनलोड मैसेज, मैसेज विल बी डाउनलोडेड, बट इन केस ऑफ this you can see the message is absent। clear? So this is exactly the difference। so differences are you have been seen that जो भी IMAP करता है POP उसका जनरली अपोजिट करता है। ठीक है, तो so in case of IMAP you are accessing your inbox on the mail server। IMAP does not actually move messages onto your computer। clear? so on जनरली IMAP क्या है, मैसेजेस को मूव नहीं कराता है। हालांकि ये मैसेज को एडिट कर सकता है, मैसेज को रीनेम कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, बट इट कैन नॉट एक्चुअली मूव मैसेजेस ऑन टू योर कंप्यूटर। क्लियर? पॉप आपका कोई भी मैसेज डिलीट नहीं कर सकता, उसको रीनेम नहीं कर सकता, और ये सारी चीजें पॉप नहीं कर सकता। ठीक है, और आपको मैं एक बात और इसमें दिखा देता हूँ। ये देखिए कैसे ये हमारा कैसे हमारा पॉप स्टार्ट करता है इनिशियल। तो जैसे देखिए स्टार्ट का मतलब होता है स्टार्ट। क्लियर? सो आस्क द सर्वर फॉर द नंबर ऑफ मैसेज वेटिंग टू बी रिट्रीव्ड। लिस्ट का मतलब है डिटरमाइन द साइज ऑफ ईच मैसेजेस टू बी रिट्रीव्ड। ठीक, रिट्रीव का मतलब है RETR, दैट इज रिट्रीव्स इंडिविजुअल मैसेजेस। देन क्विट का मतलब है कि एंड्स द पॉप 3 सेशन, जो भी सेशन हमारा वो टर्मिनेट हो जाएगा। क्लियर? so these are what the related communication through POP। so now again I am sharing the tutorial sheet। this is the differences। clear? so इस तरह से हम लोग differences देख सकते हैं। now इसके बाद अगला क्वेश्चन है explain IMAP4। ये आप लोग कर ही लेंगे। इसके बाद what do you understand by MIME? explain MIME header। आज हमने आपको माइम एक बताया था, वर्ड माइम का फुल फॉर्म बताया था आपको। क्या होता है माइम? हेलो? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सपेंशन। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ओके, सो माय क्वेश्चन इज व्हाट, इसको मतलब हम कैसे ये डिफाइन कर सकते हैं? माइम ये तो फुल फॉर्म हो गया, कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हेलो? हाँ बेटा, इसको बताइए, मेल इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे सिद्धांत? तो ये नॉन ASCII डेटा को मेल के थ्रू सेंड करने में हेल्प करता है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल होता है टाइप से। यही इसका सबसे मेन फीचर होता है कि जैसे हमारे पास जो नॉन आस्काई डेटा है उनको एक्सेस करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे हमने आपको एक डायग्राम भी दिखाया था, मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ।
तो आपको ये क्लियर होगा अभी। जस्ट वेट, आई एम जस्ट शोइंग यू। आई थिंक मैं आपको एक बार इसमें दिखा चुका हूँ, फिर भी मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको समझ में आएगा अभी। ये देखिए आप, ये दिख रहा है डायग्राम सभी को? नाउ इट इज क्लियर रिगार्डिंग माइंड। ये दिख रहा है सभी को? यस सर। इसको आप डायग्राम देखिए, दिस इज द डायग्राम फॉर द हाउ द डेटा गेट फ्लो थ्रू माइंड। ठीक है, तो देख सकते हैं वी हैव अ यूजर, यूजर एजेंट। यहाँ पे देखिए नॉन आस्काई जो आपका डेटा है या कोड है, इट इज माइम के थ्रू इसको हम 7 बिट एनवीटी आस्काई डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? जैसा कि आपने अभी मुझे बताया कि इफ वी हैव अ नॉन आस्काई डेटा देन वी कैन कन्वर्ट इट थ्रू माइम टू इनटू द आस्काई डेटा। क्लियर? टू गेट ट्रांसफर्ड। ठीक है, then we have MTA, that is message transfer agent, and this is on the second end, that is again message transfer agent. So through message transfer agent, this 7 bit ASCII data will get transferred. Clear? And then it again goes to the MIME end. तो एक तरह से sender end हो गया, receiver end हो गया, ठीक है ना? Then it goes to the MIME on the receiver end. Then MIME क्या करेगा फिर से, जो आपका ASCII data है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? नॉन ASCII में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ एक तरह से कह सकते हैं दिस इज द सेंडर एंड, जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमीटर एंड पे नॉन आस्काई टू आस्काई में कन्वर्ट हुआ, और रिसीविंग एंड पे आस्काई टू नॉन आस्काई में कन्वर्ट होके देन अगेन वी हैव रिसीव्ड ऑन द यूजर एजेंट। क्लियर? तो दिस इज हाउ द माइम प्रोसेस डन। क्लियर? ये आपका माइम हेडर है, दिस इज द माइम हेडर। ये क्वेश्चन आपका इसमें ये भी है कि एक्सप्लेन माइम हेडर, तो ये आपका माइम हेडर है। यू कैन से द माइम हेडर के अंदर आपका आता है ईमेल हेडर, email body, and this is the MIME header. Clear? So MIME version 1.1 content type, that is type oblique subtype, and content transfer encoding, encoding type, content ID, that is message ID, content description, textual explanation of the non-textual contents. Clear? So this is what MIME header. ठीक है, फिर ये आपका डेटा टाइप्स एंड सब टाइप्स है इन MIME में। जैसे मान लीजिए अगर डेटा टाइप की बात करें, टेक्स्ट टाइप का डेटा है, तो टेक्स्ट आपका क्या हो सकता है? सब टाइप। अगर टेक्स्ट को दो पार्ट में फिर डिवाइड करें तो इट विल बी प्लेन टाइप डेटा, प्लेन टाइप टेक्स्ट एंड एचटीएमएल टाइप टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन की क्या होता है? प्लेन इज अनफॉर्मेटेड। ठीक है, एचटीएमएल अपना एचटीएमएल फॉर्मेट को फॉलो करता है। इफ यू टॉक अबाउट द मल्टी पार्ट टाइप, मल्टी पार्ट में फिर फर्दर डिवाइड करते हैं तो मिक्स, पैरेलल एंड डाइजेस्ट एंड देन अल्टरनेटिव। मिक्स्ड की अगर हम बात करें तो दिस कंटेन्स, बॉडी कंटेन्स ordered parts of different data type। पैरेलल की बात करें तो सेम एज एबव बट नो ऑर्डर। डाइजेस्ट की बात करें तो सिमिलर टू मिक्स सब टाइप बट द डिफॉल्ट इन मैसेज ऑब्लिक आरएफसी। एंड ऑल्टरनेटिव की बात करें तो पार्ट्स। तो ये सारे हमारे आप देख सकते हैं। इमेज की बात करें तो इमेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू जेपीजी, जीआईएफ। क्लियर? वीडियो की बात करें तो वीडियो इज डिवाइडेड इनटू एमपीईजी। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ऑडियो की बात करें तो दिस इज बेसिक सिंगल चैनल एनकोडिंग ऑफ वॉइस और 8 किलोहर्ट्ज सिग्नल। एप्लीकेशन इज पोस्ट स्क्रिप्ट एंड ऑक्टेट स्ट्रीम। पोस्ट स्क्रिप्ट इज adopt पोस्ट स्क्रिप्ट इन जनरल बाइनरी डेटा इज देयर। तो दिस इज व्हाट माइंड है। इसके बाद आपका कंटेंट ट्रांसफर इनकोडिंग में 7 बिट है, तो ये एनवीटी आस्काई कैरेक्टर एंड शॉर्ट लाइन है। 8 बिट की बात करें, नॉन आस्काई कैरेक्टर एंड शॉर्ट लाइंस। बाइनरी में देखिए नॉन आस्काई कैरेक्टर्स विद अनलिमिटेड लेंथ लाइंस। ठीक है, इसके बाद बेस 64 है, तो दैट इज 6 बिट ब्लॉक्स ऑफ डेटा एनकोडिंग इनटू 8 बिट आस्काई कैरेक्टर। तो ये सब हमारा, इज इट क्लियर? ये एसएमटीपी की रेंज है।
हम आपको हमेशा बताते थे SMTP क्या है, हमारा सेंडर एंड की तरफ से जाता है, ठीक है। यस देखिए रिसीवर की तरफ से हमें कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, तो SMTP से जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो सेंडर की साइड से होता है, दैट इज ए पुश टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। इसको SMTP रेंज बोलते हैं। दिस डायग्राम शोज SMTP रेंज, कहाँ तक SMTP हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, किस लेवल तक। तो देखिए सेंडर से लेके मेल सर्वर एंड देन मेल सर्वर टू another mail server we are having with the SMTP, clear। और जब यहाँ की बात करेंगे रिसीवर साइड की, तो यहाँ पे हमारा पुल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। यहाँ तक तो पुश चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पुश ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ इस मेल सर्वर पे मेल आएगी, वो आपकी पुल होके मैसेज एक्सेस एजेंट के थ्रू उसको खींचेगा मेल बॉक्स से, ठीक है। तो यहाँ SMTP वर्क नहीं करेगा, SMTP आपको केवल इतने पोर्शन में वर्क करता है, ठीक है। यहाँ से एक तो सेंडर से मेल सर्वर के बीच में जो लैन और वैन से कनेक्टेड है, यहाँ मैसेज सेंडर पुश करेगा मेल सर्वर को, देन मेल सर्वर आपका इंटरनेट के थ्रू दूसरे मेल सर्वर को मैसेज पुश करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो SMTP यहाँ तक आपका इन्वॉल्व हो रहा है। तो दिस इज द रेंज ऑफ SMTP। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, एक्सप्लेन IMAP कोड, देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइम, एक्सप्लेन माइम हेडर्स। ये दोनों चीजें हो गई, ठीक है। इसके बाद आपके कुछ वर्चुअल टर्मिनल से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे URL क्या है, देन एक्सप्लेन वर्ल्ड वाइड वेब, क्लियर, www दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब, एंड देन क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, दिस विल बी डिस्कस लेटर ऑन, क्लियर। इसमें हम लोग इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी भी पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम कैसे सिक्योर बना सकते हैं। You have you all heard about the SSL security? SSL security किसी ने सुना है? Anyone heard about the SSL security? सर फुल फॉर्म बताइए एक बार। नहीं, ये तो मैं आपसे खुद पूछ रहा हूँ। नहीं सर नहीं सुना है SSL। अच्छा, नहीं सुना है। Okay. Have you heard about secure socket layer? सर सॉकेट लेयर तो सुन। हाँ, एक SSL में इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। सिक्योर सॉकेट्स लेयर ये एक्चुअली जब हम कोई भी मेल या कोई भी डेटा सपोज एनक्रिप्ट करके ट्रांसफर करना चाहें, एनक्रिप्ट मतलब